everyone. A very warm welcome to all of you to today's Mental Health and Psychopathology webinar organized by Forensic Mindset, founded by Ayush Vikram Singh. I'm a Priya Bharti, a team member at Forensic Mindset, and I'll be your host for this webinar. Today, we are honored to have with Ms. Shanza Abbas, who is a dedicated and passionate professional in the field of clinical psychology. She is currently pursuing her bachelor's degree in psychology from COMSET University Lahore and has gained practical experience as a clinical psychology intern at Care and Cure Wellness Center. She has been actively involved in clinical observation, case studies, psychological assessment, and therapeutic sessions, along with participation in international conferences and research activities, reflecting her strong practical understanding and commitment to academic excellence. So, without taking too much time, I would like to invite Ms. Shanza Abbas to take over the session. Ma'am, this is stage is yours now. Good evening, everyone. May I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. First of all, I introduce myself. I am Shanzaba, psychologist and also researcher that I performed many researches international on different topics related to social sciences and psychology, especially in Turkey and Paris. And I completed my study from COMSET's University of Islamabad, Lahore campus, Pakistan. So now it's your turn. Everyone introduce themselves. So let's start. May I audible? Yes, ma'am. Okay, introduce yourself, your name, your Shakshi, education background. you can introduce yourself, Shakshi. Good evening, all of you. My name is Shakshi. I am a student of forensic science. Right now, I am pursuing Bachelor's of Forensic Science from HRIT University, Ghaziabad, Uttar Pradesh. And that's it. Okay, anyone else? Mohammed, Assalamu alaikum everyone. Ma'am, myself Mohammad Ghazal Shazad from Lahore, Pakistan, and I am pursuing my bachelor in criminology and forensic science at Minhaj University, Lahore. Okay, anyone? Ankita, next year. Good evening, everyone. I'm Ankita Nath, and I'm currently pursuing BSc Forensic Science from MIT University, Noida, Uttar Pradesh. Okay, okay, let's start. So, our topic is the foundation of mental health and well-being. So, हम इसको स्टार्ट करते हैं. How is your internal weather? तो ये हमारा टॉपिक है. इसको हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी देख लेते हैं. इसमें सब स्टूडेंट्स ने चैट में खुद को रेटिंग करनी है स्केल के थ्रू, लाइक 1 to 10. जो स्टूडेंट्स एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, लाइक 1 to 5 रेटिंग करेंगे खुद को, लाइक जो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं या थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, जिस तरह से भी है, वो 1 to 5 रेटिंग करेंगे. और जो लोग एनर्जेटिक फील कर रहे हैं वो 5 to 10 रेटिंग करेंगे खुद को. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. एनीवन?
ओके, तो ये हमने एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की है, इसको हमने क्यों स्टार्ट किया है, तो हम ये देखते हैं। हम सबसे पहला जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको खुद के बारे में कितनी अवेयरनेस है। साइकोलॉजी का फर्स्ट स्टेप भी यही कहता है कि आपको खुद के बारे में कितनी अवेयरनेस है, कितना आप खुद के बारे में जानते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपका बिहेवियर क्या है, उसके बाद आप उसकी बिना पर रिएक्ट किस तरह से करते हैं। दैट इज़ योर सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद है व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बेसिकली क्या होती है? मेंटल इलनेस की एब्सेंस ही सिर्फ नहीं मेंटल हेल्थ होती, बल्कि ये एक स्टेट ऑफ वेल बीइंग होती है, जहाँ पे इंडिविजुअल या पर्सन को रियलाइज़ होता है कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, या डेली लाइफ में जो भी नॉर्मल स्ट्रेसेस आते हैं उस तरह को वो किस तरह से कोप करते हैं, उनमें कितनी एबिलिटीज़ है स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, रिलीज़ करने में, किस तरह से वो रिलीज़ कर सकते हैं। दैट इज़ मेंटल हेल्थ। और अगर हम अपनी कम्युनिटी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, वर्किंग प्रोडक्टिवली किस तरह से हमारी होती है, ये सारा जो है हमारे मेंटल हेल्थ कहलाती है। सिर्फ मेंटल इलनेस को ही इसमें डिस्कस नहीं किया जाता। अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ वीक होती है। लाइक बहुत ज़्यादा कुछ लोग हेल्दी फील कर रहे होते हैं, कुछ लो फील कर रहे होते हैं, जिस तरह से अभी हमने रेटिंग करवाई है। ज़्यादा बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने जो है ना वो 6 टू 7 रेटिंग की है। लाइक वो एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। वो क्यों फील कर रहे हैं? शायद वो कुछ लर्न करना चाह रहे हैं, वो इस वेबिनार में आए हैं, अटेंड किया है, वो देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी मेंटल हेल्थ को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दैट इज़ मेंटल हेल्थ। उसके बाद हम अगर देखें द स्पेक्ट्रम ऑफ द माइंड। माइंड बेसिकली सिर्फ एक ही स्टेट में नहीं होता, बल्कि ये डिफरेंट स्टेट में मूव करता रहता है। अगर आप नॉर्मल फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, काम फील कर रहे हो, स्लीपिंग वेल है, आपको सोने में कोई भी मसला नहीं हो रहा, नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, देन आप हेल्दी स्टेट में हो। अगर आप नर्वस फील कर रहे हो, इरिटेबल फील कर रहे हो, हर किसी पे गुस्सा आ रहा है आपको, और जो है ना सोने में भी आपको मसला आ रहा है, आप स्लीपिंग पिल्स यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ रिएक्टिंग स्टेट। आप किसी पे चिल्ला भी सकते हो, गुस्सा भी कर सकते हो, इस स्टेट में नर्वस फील कर रहे हो तो आप। थर्ड वन इज़ दैट परसिस्टेंट फियर। आप इसमें फ़ियर फ़ील कर रहे होते हो। अगर आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जिसे फ़ोबिया होगा, हाइट फ़ोबिया हो सकता है वो। आपको कोई ले गया है 17th फ्लोर पे और कह रहा है कि आप नीचे देखो या नीचे जंप कर दो, तो आपको जो क्या है ना वो फ़ियर फ़ील करोगे, परसिस्टेंट फ़ियर। बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ सकता है, आप या लो फ़ील कर रहे हो, इससे आपको इंजरी भी हो सकती है, तो ये एक इंजर्ड स्टेट है। उसके बाद 4th नंबर पे आती है इल फेज़। इल स्टेट में क्या होता है कि आपकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स आ जाती हैं। आप जो भी डेली एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे होते हो, उसमें आपका दिल नहीं लगता। आप बहुत ज़्यादा जो है ना वीक फ़ील कर रहे होते हो। आप कहते हो कि मैंने अब ये कोई काम नहीं करना। तो इसमें आपको डॉक्टर का या साइकोलॉजिस्ट का मशवरा भी लेना पड़ता है, उनसे कंसल्ट करना पड़ता है। दैट इज़ क्लिनिकल डायग्नोज़। ये 4 फेजेज़ हैं स्पेक्ट्रम ऑफ द माइंड की। ये जो 3 फेजेज़ हैं ना, इसमें अगर कोई है तो दैट इज़ नॉर्मल, क्योंकि ये स्टेट चेंज होती रहती हैं। लेकिन अगर कोई 4th स्टेज में आ गया है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स हैं, तो उससे जो है ना साइकोलॉजिस्ट से या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि उनकी डेली लाइफ नॉर्मल हो सके, ताकि आपके अंदर जो भी स्ट्रेस वगैरह हैं वो इजीली आप उसे रिलीज़ कर सको। इसके भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं स्ट्रेस को रिलीज़ करने के, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है मिथ बेस्ड फैक्ट। ये हम देखते हैं हमारे मेंटल हेल्थ में क्या मिथ आते हैं, क्या उसके फैक्ट्स हैं। मिथ अगर हम देखें, सबसे बड़ा मिथ इसका ये है कि मेंटल हेल्थ में जो भी इश्यूज आ रहे होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये कमज़ोरी की वजह से होते हैं, वीकनेस का साइन है। तो इसमें आम तौर पे लोग कहते हैं कि जो पागल लोग होते हैं, क्रेज़ी लोग होते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन इसका जो मेन फैक्ट है वो ये है कि ये बायोलॉजिकली और सोशल कंडीशन में साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। मेंटल हेल्थ में जो भी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं, उसको रिज़ॉल्व किया जाता है। या कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए साइकोलॉजी यूज़ करते हैं, और साथ ही जो है ना साइकोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। दैट इज़ मिथ विद फैक्ट।
उसके बाद अगर हम एक मॉडल को डिस्कस करें वो है बायो साइको सोशल मॉडल। ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है ये 3 चीज़ों से मिलके बना है। बायो मीन्स बायोलॉजिकल, साइको मीन्स साइकोलॉजिकल एंड देन सोशल। बायोलॉजिकल मीन्स जेनेटिक, ब्रेन केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। इसमें ये होता है कि आपके जेनेटिकली आपके अंदर जो भी चेंजेस आती हैं, जो भी आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा आप गुस्सा करते हो बचपन से लेके आपके अंदर ये चीज़ डेवलप हुई हुई है कि आप जो है ना आपका ठीक ही नहीं हो रहा ये चीज़। तो ये इट मीन्स कि जेनेटिकली है आपके अंदर, आपके पेरेंट्स में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो आपके फादर में या मदर में, या हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स में हो। वहाँ से ये चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाती है कि आप जो है ना फिर आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। देन सेकंड नंबर पे है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में ये है कि आपका कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ आपके साथ हुआ है या आप हरेस हुए हो, किसी ने हरेसमेंट हुई है आपके साथ। इस तरह का कोई भी केस आया है जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो। तो ये एक जो है ना आपकी पर्सनैलिटी पे अफ़ेक्ट कर जाता है, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। आपकी पर्सनैलिटी अगर ट्रॉमा से पहले बहुत अच्छी है, आप काम हो, स्लीप अच्छी आ रही है, आपको हर तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, नॉर्मल स्ट्रेसेस के अलावा कोई भी आपको क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो पास्ट ट्रॉमा के बाद ये एक आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, आप हर वक़्त स्ट्रेस में रहते हो, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं लोग ट्रॉमा के बाद। तो फिर इसमें देखा जाता है कि आप में कितनी कोपिंग स्किल्स हैं, आप कितनी जल्दी खुद को कोप कर सकते हो, निकल सकते हो स्ट्रेस से बाहर। अगर तो आप के साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, उसके बाद भी आपकी पर्सनैलिटी कुछ अरसे बाद नॉर्मल हो चुकी है, देन आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कोपिंग स्किल्स हैं। आपने खुद को एक ट्रॉमा से बाहर निकाल लिया और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है। तो ये सबसे मेन स्टेप होता है कि हर पर्सन को जो है ना ज़रूरी होता है कि वो अपनी पास्ट को भूलकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, देन वो अपनी अच्छी लाइफ गुज़ार सकता है। थर्ड नंबर पे आता है सोशल। इसमें हमारे माइंड और बॉडी को लेके ना एक कॉन्सेप्ट है कि हमारी फैमिली एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा, उतना अच्छा हमारा मेंटल प्रोसेस होगा। अगर हमारी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे, हमारे पेरेंट्स के में प्रॉब्लम्स आएँगी, वो बहुत ज़्यादा शाउटिंग करते हैं, बच्चों को डाँटते हैं, खुद एक-दूसरे के साथ लड़ाई-झगड़ा करते हैं या रिलेटिव्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, देन आपकी भी मेंटल हेल्थ कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। आप खुद को लो ही फ़ील करते रहोगे। तो इसी तरह से वर्क स्ट्रेस भी ये है कि अगर आपका बॉस अच्छा नहीं है, सुपरवाइज़र अच्छा नहीं है, वहाँ पे मैनेजर अच्छा नहीं है, वो हर वक़्त आपको जो है ना सैलरी डिडक्ट कर लेते हैं, तो आप उनके लिए भी अच्छा काम नहीं कर पाओगे, वर्क ओवरलोड हो जाता है, तो आप जो है ना जो काम आपने करना भी होता है ना, उस पे भी आपका मेन फ़ोकस नहीं होता। इन सब चीज़ों को डील करने के लिए ये मॉडल है बायो साइको सोशल मॉडल। तो ये इन 3 चीज़ों से बना है। कल्चरल वाइब भी इसमें आ जाती है कि आपका कल्चर किस तरह का है। इस्लामिक कल्चर है और कोई कल्चर है, तो सोसाइटी आपकी किस तरह की है। अगर सोसाइटी अच्छी है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, तो आपका मूड भी फ्रेश रहता है। अगर वो लोग आपसे बात नहीं करते या आप उनसे बात नहीं करते, तो ये एक सोशल गैप का साइन भी आ जाता है। उसके बाद एक एक्टिविटी है हमारे पास, व्हाट्स इन योर बकेट, कि आपकी बकेट में क्या है। बकेट मीन इज़ योर माइंड। अगर आपने एक बकेट रखी हुई है, उसके अंदर पानी भरी जा रहा है, तो उसमें एक टैप लगा हुआ है, ठीक है? अब टैप क्या है? आपका स्ट्रेस को रिलीज़ करने का एक होल है। और इनपुट आप उसमें क्या कर रहे हो, आप अपना स्ट्रेस इनपुट कर रहे हो बकेट में, माइंड में। इनपुट हो रहा है वो स्ट्रेस, आपका एग्ज़ाम का हो सकता है, आपकी फैमिली का हो सकता है, सोशल मीडिया का भी हो सकता है, आपकी प्राइवेसी की वायलेशन हो रही है, इस तरह का कोई भी स्ट्रेस हो सकता है। तो वो जब इनपुट होता रहता है, तो आपका टैब ब्लॉक हो जाता है। आप अपना स्ट्रेस किसी से रिलीज़ नहीं कर रहे होते। बहुत सारे लोग होते हैं अपना स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं, हॉबीज़ के थ्रू रिलीज़ करते हैं, लोगों से बातें करके, अपने फ्रेंड्स से बातें करके, जो आपके ज़्यादा करीबी दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, या आपकी फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो आप उनके साथ अपनी बातें करके ना अपना स्ट्रेस को रिलीज़ करते हो। और कुछ लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ़ सो के अपना स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा टाइम सो जाऊँगा ना, तो मेरा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। शायद वो टाइम को जो है ना एक्सटेंड करना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें
इसकी कि आप लोगों से मैं पूछूं कि आप लोग किस तरह से अपने स्ट्रेस को रिलीज करते हो, तो आप लोग मुझे चैट में बताएं कि आप अपने दोस्तों से बातें करके कर सकते हैं कि आपकी क्या हॉबीज हैं। जैसे अगर हम बॉयज़ की बात करें ना, तो वो उनमें ज़्यादा ये होता है कि वो क्रिकेट खेल के, फुटबॉल खेल के बाहर चले जाते हैं घर से। अगर कोई घर में कोई प्रॉब्लम हुई है तो क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, फुटबॉल खेलने चले जाते हैं, दोस्तों के पास चले जाते हैं। इस तरह से उनका स्ट्रेस बहुत हद तक रिलीज हो जाता है। तो या कुछ लोग सो के होते हैं। अब जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करके जो है ना अपना स्ट्रेस को रिलीज कर लेती हूँ। तो इसी तरह से आप भी बताएं चैट में। यस, बुक्स को रीड करके भी, पोइम्स को लिख कर भी हो सकता है। और ओके, और कोई बताना चाहता है? ओके, यहाँ पे अभी हमारे पास आया है, आंतिका ने बताया है हॉबीज एंड स्लीप। यस, और आपकी हॉबीज क्या हैं? यस, क्राफ्टिंग भी अच्छी है, बुक रीडिंग भी अच्छी है, ठीक है। कुछ लोग, एक ने कहा है कि सॉन्ग सुन के, ये भी बहुत अच्छा है, बुक्स रीड करके भी, पोइम्स लिख कर भी। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आए हैं स्ट्रेस को रिलीज करने के। यस, यही बेसिकली साइकोलॉजी हमें बताती है कि हम अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें एक स्टेप लेना होता है। अगर हम किसी को नहीं बताते, अगर हम सबसे पहले मेन जो हर किसी के घर में है, मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में क्या होता है कि अब जो हस्बैंड है उसकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो बाहर जाता है, जॉब करता है और लोगों से भी मिलता है। इसी तरह जो लड़की है वो अपने ससुराल में रह रही होती है, उसके भी 100 मसले मसाइल होते हैं। अगर वो एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करते, एक दूसरे को नहीं बताते, अपनी फैमिलीज में नहीं डिस्कस करते अपनी प्रॉब्लम्स को, तो एट द एंड क्या होता है कि उनमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो जो है ना ओवरफ्लो हो जाता है उनका स्ट्रेस, कि एट द एंड वो बर्न आउट हो जाता है। बर्न आउट किस सूरत में होता है कि उनकी डाइवोर्स भी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं कि उनकी डाइवोर्स हो जाती है, कि वो कहते हैं कि हमसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। ओके, उसके बाद है साइकोलॉजी को हम क्यों स्टडी करते हैं। लास्ट हमारी स्लाइड यही है कि हम अपने जो है ना खुद को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ में जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं उसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से दोस्तों से मिलें, बाहर जाएं, आउटिंग करें। क्योंकि हम सब की लाइफ ना एक सीक्वेंस में चल रही है। लाइफ क्या है, सुबह उठो, उठ के अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, उसके बाद आके थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। कुछ लोग डिस्कशन करते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद। तो हमें चाहिए कि हम खुद को समझें, और जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं ना, उसको हम एक दूसरे से डिस्कस करें, ताकि वो प्रॉब्लम्स डेली टू डेली हमारी सॉल्व होती रहें। इसी तरह से अगर हम देखें कि हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं हीलिंग में, लाइक उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको हम अच्छा मशवरा दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि आप इस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। और नंबर थर्ड पे है कि हम अपने करियर को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, जो हमारे हाई डिमांड फील्ड में जा सके हम। तो इस तरह से हम साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो ये हमारी आज की स्लाइड्स थी, आज का सेशन था। अगर किसी को इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, देन आस्क मी। और इसके अलावा जो बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट सेशन में, लाइक परसों हम डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन उसके अलावा इसको लेके अगर हम आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, देन आस्क मी।
किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, तो कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसऑर्डर्स को और साइकोपैथोलॉजी को। उसके साथ-साथ बहुत सारे बच्चों के इसको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, उसको भी हम जो है ना कल ही डिस्कस कर लेंगे। कल के सेशन में और जो बाकी क्वेश्चन रह जाएँगे, उसको हम परसों के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आई होप सो कि आप सबको समझ आई होगी आज के सेशन की। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you everyone for being a part of today's. We look forward to seeing you in tomorrow's session. Have a great evening. And once more thing, if you have any questions, you may note them. At the end day of the webinar, we will have a 10-minute Q&A session where ma'am will address your queries. Thank you.